डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 12 एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ बची हुई प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, HBZ रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड and also reducing properties of formic acid. Clear? First we go the reaction of alkyl group. Reactions of alkyl group. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। हम लोगों ने यहां रिएक्शंस पढ़े थे सबसे पहले, ठीक, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर, उसमें हमने पढ़ा था, आपको बताया भी था और हम लोगों ने जाना था रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। क्लियर? और अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक, अब ऐसे रिएक्शंस जहां अल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमारा है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन, इसके पूरा फुल नेम क्या है, आइए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। H means hell, clear, and there B means wall hard, and Z means Zaleski. Zaleski reaction, clear? ये तो शॉर्ट फॉर्म है HBZ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है वहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक, उस स्थान पर जो है क्लोरीन या ब्रोमीन का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक, ये क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड containing alpha hydrogen, here where alpha hydrogen is replaced by chlorine or bromine. Clear? Now we go reaction। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा इन दिस वे। सपोज दिस इज टेकन acetic acid, this is alpha carbon, this is when it is treated with chlorine or bromine, then one alpha hydrogen is replaced by Cl. Now it is a monochloroacetic acid, ठीक, monochloroacetic acid। ये now further, if chlorine is available, ठीक, then another hydrogen is also replaced and there two chlorine atoms are introduced. This is dichloroacetic acid, and further again it reacts with chlorine. The third alpha hydrogen also replaced in this way, and it is a trichloroacetic acid. Clear? Remember to it, hence only alpha hydrogen are replaced, not beta, gamma and so on. Suppose this is compound is taken CH3CH2 COH, you react with bromine, so hence this is alpha carbon, this is beta carbon,
These hydrogens are only replaced, not these hydrogens, and it forms CH3CH2. यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और वहां ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. क्लियर? दिस इज द 2-bromo-propanoic acid. Nexus of bromine. Again reaction run. It forms CH3CBr and this is compound. Only alpha hydrogens are replaced by chlorine or bromine. Now we go. Another topic, ring substitution. In aromatic carboxylic acids, यहां एरोमेटिक एसिड्स की बात कर रहे हैं. ये जो आपके रिएक्शंस होंगे इनमें भी आपके जैसे कि फर्स्ट नंबर हाइलोजिनेशन. क्लियर? हेंस ब्रोमीन और क्लोरीन gives aromatic halogenation. Like this is benzoic acid. When it reacts with bromine in the presence of FeBr3, which is used as a halogen carrier. ठीक, remember to it. यहां ध्यान रखें CH डीएक्टिवेटेड ग्रुप है. डीएक्टिवेटेड यानी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. ऐसे में क्या होगा कि यहां पर मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा. सो ब्रोमीन कम ऑन द मेटा पोजीशन and it forms the meta-bromobenzoic acid. Its name is meta-bromobenzoic acid. Yeah. In the same way, next we go sulfonation reaction. They are sulfonation. यहाँ क्या होगा? Aromatic acid reacts with concentrate H2SO4 to give meta product. In this way, like this is COH. When it reacts with concentrate H2SO4, this is taken concentrate. Now from the meta position, one H is removed and there SO3H group comes. It is the meta-sulfocarboxylic acid. Sorry, meta-sulfobenzoic acid. Meta-sulfobenzoic acid. क्लियर? ये इसका एक नाम और भी कभी कभी कहा जाता है. ठीक है ना? मेटा कार्बोक्सी या मेटा कार्बोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. Now we go another
नाइट्रेशन रिएक्शन, nitration. It occurs in presence of nitrating mixture. What is nitrating mixture? It is concentrate nitric acid and concentrate H2SO4. That's what happens when it reacts with concentrate nitric acid in presence of concentrate H2SO4. Then NO2 plus introduced on this position, on meta position. जो मेटा पोजीशन है वहां पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है and it removes water molecule. So it is the ऑर्थोपैरा के बीच में ये मेटा पोजीशन है, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक, ये आर्थो पोजीशन थी, ये पैरन के बीच में ये नाइट्रो पोजीशन है मेटा. Now come on next. Reducing property of formic acid. There is aldehydic property. जो आपका फॉर्मिक एसिड है इसमें कुछ प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की भी होती है, ओवर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. अब एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, ध्यान में कुछ आप एल्डिहाइड्स के वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं. टॉलरेंस टेस्ट, दैट इज रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिजल्ट, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन. इन सभी में जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता था, वो रिडक्टेंट का वर्क करता था. और फॉर्मिक एसिड में भी ऐसा होता है. क्यों? क्योंकि फॉर्मिक एसिड में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटिक एसिड में नहीं है, अदर एल्डिहाइड्स में नहीं है. ये कैसे है भाई, आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर पर. दिस इज द फॉर्मिक एसिड. क्लियर? ये ध्यान से देखें आप, ये यहां पर जो पार्ट है, ठीक, ये शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट. It is the carboxylic acid group, or you can say carboxyl group. ठीक, और हम इस पार्ट को यहां छिपा लें, आप देखें इस पार्ट को खाली CHO. It is the aldehydic group. ये तो इस पार्ट के वजह से ये एसिड प्रॉपर्टी शो करता है, और इसको हम लोग यदि छिपा लेते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, ये एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा. ठीक, जैसे रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिजल्ट, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक, रिडक्शन ऑफ कैलोमैलिकोसिस ऑफ लिमिट, ये सब प्रॉपर्टीज को शो करेगा. आइए देखते हैं. रिडक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट and so on, reduction of potassium dichromate. कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. यहां पर जो है, जो फॉर्मिक एसिड है आपका, ठीक, तो उसमें किस प्रकार से प्रॉपर्टी शो होती है, आइए इस बारे में हम लोग थोड़ा सा विचार पहले भी कर लेते हैं. SUH एक्चुअली में नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और इसको की मालूम क्या बनाता है, CO2 and H2O. तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है. क्लियर? आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. नाउ
रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिजल्ट, यानी कि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट को शो करता है। क्लियर? when formic acid reacts with tolerance reagent, clear, then it forms CO2। और मैंने रिएक्शन बताया था CO2 और H2O बन रहा था, hence also forms CO2 H2O and also this is reaction, this is the silver mirror। एल्डिहाइड में लोगों ने पढ़ा था कि जब एल्डिहाइड को हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करते थे, ठीक, तो सिल्वर मिरर प्राप्त होता था। दिस रिएक्शन इज आल्सो गिवन बाय फॉर्मिक एसिड। ध्यान रहे एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड वगैरह में ये टेस्ट नहीं हो सकता है, यानी कि ये डिफरेंस है आपका फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, reduction of Fehling solution। Fehling solution का भी हम लोग पढ़ चुके थे एल्डिहाइड में, कि एल्डिहाइड का ये विशेष प्रॉपर्टी थी कि वो Fehling टेस्ट देता था, कीटोन्स में नहीं था आपका, क्योंकि मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? आइए देखते हैं इनके बारे में हम लोग। या फॉर्मिक एसिड reacts with Fehling solution to form, यहां पर भी हम लोग हीट करते हैं रिएक्शन में, ठीक, form CO2 and their red precipitate of cuprous oxide। इससे हम लोग क्या कहते थे, क्यूप्रस, इसका लाल रंग का अवक्षेप रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता था। इट इज ये दोनों स्पेशल टेस्ट थे आपके एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टी के, और यहाँ एसिड में केवल फॉर्मिक एसिड में ये प्रॉपर्टीज शो होती हैं। और देखते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 in acidic medium, ठीक, यहां पर हम लोग H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं एक्चुअली, ठीक। यहां एक्चुअली में KMnO4 के H2SO4 से क्या रिएक्शन होती है, आइए पहले उसी बात के बारे में बात कर लेते हैं। ये KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है आपका यहाँ पर, ठीक। यहां बनता है पोटेशियम सल्फेट, साथ में मैंगनीज सल्फेट, देन H2O एंड आल्सो नेसेंट ऑक्सीजन। ये बन रही है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। और ये बहुत फास्टली जो है फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 और H2O बनेगा। इट इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। दोनों रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे भी जोड़ना चाहें, क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन व्हाट कम रिएक्शन, कंबाइनली दोनों रिएक्शंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स K2SO4 MnSO4 plus they are CO2 with 5 CO2 and they are 8 H2। इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर कंबाइन करके लिखेंगे, इस फॉर्म में रिएक्शन आएगी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट और है फॉर्मिक एसिड का रिडक्शन प्रॉपर्टीज में, रिडक्शन ऑफ mercury chloride, reduction of mercury chloride. ध्यान है, इसका नाम क्या, मर्क्यूरिक क्लोराइड। देखिए रिएक्शन किस फॉर्म में होता है, as it forms, एक्चुअली में जो आपका मर्क्यूरी क्लोराइड है इससे पहले बनता है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, इट फॉर्म्स मर्क्यूरस क्लोराइड, और साथ में यहां पर जो है CO2 गैस बाहर निकल जाता है। यहां पर इसका मैंने क्या नाम बताया, मर्क्यूरिक क्लोराइड, एंड इट्स नेम इज मर्क्यूरस क्लोराइड। इनका एक और कॉमन एंड ट्रेड नेम है, वो नाम क्या है, आइए उसको देखते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कोरोसिव सब्लिमेट, एंड इट्स ट्रेड नेम इज कैलोमल, कैलोमल के नाम से भी पुकारते हैं। इनको हिंदी में रस पुष्प और रस कपूर के नाम से भी पुकारते हैं, रस पुष्प और रस कपूर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब एक खास बात है, जो मर्क्यूरस क्लोराइड बना है, इट अगेन रिड्यूस्ड बाय फॉर्मिक एसिड। हाउ, आइए देखते हैं। इट फॉर्म्स मरकरी एंड CO2 एंड HCl। यहां मरकरी का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, क्लियर, इट गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट। ओके, ये हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है, कि आगे भी और बातें हैं, जारी रहेंगी नेक्स्ट वीडियो में।